I think we should start. Jaya Radha Madhava Kunja Vihari Jaya Radha Madhava Kunja Vihari Jaya Gopijana Vallabha Girivaradhari Jaya Gopijana Vallabha Girivaradhari Yashodanandana Braja Jana Ranjana Yashodanandana Braja Jana Ranjana Yamuna Tera Vanachari Yamuna Tera Vanachari Jaya Radha Madhava Kunja Vihari Jaya Gopijana Vallabha Girivaradhari Yashodanandana Braja Jana Ranjana Yamuna Tera Vanachari Jaya Radha Madhava Kunja Vihari Jaya Sri Krishna Chaitanya Prabhu Nityananda Sri Advaita Gadadhara Sivasadi Gaura Bhakta Vrinda Bhaja Sri Krishna Chaitanya Prabhu Nityananda Sri Advaita Gadadhara Sivasadi Gaura Bhakta Vrinda Hare Krishna 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 Hare 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 Rama 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 Hare 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 Krishna 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 Hare 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 Rama 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 Hare 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 Krishna 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 Hare 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 Rama 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 Hare 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 Krishna 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 Hare 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 Rama 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 Hare 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 Krishna 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 Hare 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 Rama 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 Hare 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 Krishna 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 Hare 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 Rama 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 Hare 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 Krishna 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 Hare 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 Ram Ram Hare 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 Krishna 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 Hare 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 Ram Ram Hare 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 Krishna Krishna Hare 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 Ram Ram Hare 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 Krishna 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 Hare 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 Ram
प्रभुपदा जय प्रभुपदा प्रभुपदा श्रील प्रभुपदा जय गुरुदेवा जय गुरुदेवा गुरुदेवा जय गुरुदेवा। हरि नाम संकीर्तन नमो सब की जय। भक्ति वेदांत स्वामी श्रील प्रभुपाद महाराज की जय। निताय गौर प्रेमानंद हरि हरि बोल। ओम नमो भगवते वासुदेवाय ओम नमो भगवते वासुदेवाय ओम नमो भगवते वासुदेवाय। नारायणं नमस्कृत्य नरं चैव नरोत्तमं देवीं सरस्वतीं व्यासां ततो जयमुदीरयेत्। नरप्रायेषु भद्रेषु नित्यं भागवत सेवया भगवती उत्तम श्लोके भक्ति भवति नष्टकी। Hare Krishna, Dandavad to you all, those who are seen and those who are unseen. Today, आज हम श्लोक 20 से आगे चर्चा करेंगे अगर कर पाए तो। स्कंद 1 अध्याय 17 और टेक्स्ट 20। अगर सबकी किताबें तैयार हों, बुक तैयार हों तो शुरू करते हैं। अप्रत्यक्याद् अनिर्देश्याद् अतिकेष्वसि निश्चयः अत्रानुरूपं राजर्षि विमर्श स्वयं निशया। अप्रत्यक्याद् अनिर्देश्याद् अतिकेष्वपि निश्चयः यत्रानुरूप राजर्षि विमर्शे स्वमनीषया। अप्रत्यक्रियाद् अनिर्देश्याद् अपिकेष्वसि निश्चयः अत्रानुरूपं राजर्षि विमर्श स्वमनीषया। व्हाट मीनिंग? अप्रत्यक्रियाद् तर्क से परे, अनिर्देश्याद चिंतन शक्ति से परे, इति इस प्रकार, केशु कोई, अपि भी, निश्चय निश्चय रूप से, अत्र वहाँ पर, अनुरूपम उनमें से सही और उचित, राजऋषि हे राजऋषि, विमृश अपने आप निर्णय लो, स्व अपनी, मनीषया बुद्धि की शक्ति द्वारा। ट्रांसलेशन परपोर्ट बाय हिज डिवाइन ग्रेस भक्ति वेदांत स्वामी श्रील प्रभुपाद। कुछ ऐसे भी चिंतक हैं जिनका विश्वास है कि न तो तर्क द्वारा कष्ट का कारण निश्चित किया जा सकता है, न उसे कल्पना से जाना जा सकता है, न ही शब्दों द्वारा उसे व्यक्त किया जा सकता है। हे राजऋषि, आप अपनी बुद्धि से यह सब सोचकर अपने आप निर्णय करें। हरे कृष्ण। परपोर्ट जरा लंबा है तो आप मदद कीजिए पढ़ने में। हरे कृष्ण। I will read the first paragraph. There is actually only one paragraph. Paragraph is only one, but just see how when you can break it. Okay. But in my book there is 3-4 paragraphs. Oh, very good. Then you do according to your paragraph. ভগবত ভক্ত বৈষ্ণবরা বিশ্বাস করেন যে পরমেশ্বর ভগবানের অনুমোদন ব্যতীত কোনো কিছু সংগঠিত হতে পারে না। তিনি পরম নিয়ন্তা। তোমার ভাগবত গীতায় 15.15 হয়েছে যে তিনি সর্বত্র বিরাজমান পরমাত্মার সকলের হৃদয়ে বিরাজ করেন এবং সমস্ত কার্যকলাপের সাক্ষী হয়ে থাকেন। কোন নাস্তিক পূর্বে এবং বর্তমানে যা কিছু করেছে তা সে ভুলে যেতে পারে, কিন্তু পরমাত্মা কোনো কিছুই ভুলেন না। জড় দেহরূপ বৃক্ষে আত্মা এবং পরমাত্মা দুটি পক্ষের মতো বিরাজ করে। আত্মারূপী পক্ষটি বৃক্ষে ফলভোগ করে, আর পরমাত্মা সেই পক্ষটি সমস্ত কার্যকলাপের সাক্ষ্য বহন করেন। পরমাত্মা জীবের সমস্ত কার্যকলাপের সাক্ষী থাকেন এবং তারই নির্দেশনায় জীবের পূর্বকৃত কার্যকলাপের স্মরণ ও বিস্মরণ হয়। তাই তিনি সর্বভক্ত নির্বিশেষ ব্রহ্ম এবং প্রতিটি জীবের হৃদয়ে বিরাজমান পরমাত্মা। তিনি ভূত, ভবিষ্যৎ এবং বর্তমান সম্বন্ধে পূর্ণরূপে অবগত
এবং তার কাছে কোনো কিছুই লুকানো যায় না। হরি বল। So this is the end of the first paragraph in my book. ओके, तो पढ़ सकती हैं Second. भक्तगण, यहाँ से भक्तगण। ओके, हरे कृष्णा वांछा भक्तगण। भगवत भक्त कृपा सिंधु पतितानां पावनेभ्यो वैष्णवेभ्यो नमो नमः। भक्तगण, अभी तो था भक्त कहाँ चला गण। गया? प्लीज थोड़ा हाथ लगाना। फिर वही बात था। मिल गए ओके। हरे कृष्णा। भक्तगण इस सत्य को जानते हैं, अतएव वह फल की आकांक्षा न करके अपना कार्य निष्ठा पूर्वक करते हैं। इसके अतिरिक्त चिंतन या पांडित्य के द्वारा भगवान की प्रतिक्रियाओं का अनुमान लगाना संभव नहीं है। तो फिर वह क्यों कुछ को कष्ट में डालते हैं और कुछ को नहीं? वह वैदिक ज्ञान के परम ज्ञाता हैं और इस तरह वह वास्तविक वेदांती हैं। साथ ही वह वेदांत के संकलन करता है। कोई भी उनसे स्वतंत्र नहीं है और हर कोई अलग अलग ढंग से उनकी सेवा में लगा हुआ है। जीव को बद्ध अवस्था में ऐसी सेवाएं प्रकृति की शक्ति के अधीन होकर करनी पड़ती है, जबकि मुक्त अवस्था में स्वेच्छा से भगवान की सेवा के लिए आध्यात्मिक प्रकृति जीव की सहायता करता है। उनके कर्मों में किसी प्रकार असंगति या उन्माद नहीं होता। वे सब परम सत्य के पथ पर होते हैं। भीष्मदेव ने भगवान के अचिंत्य कर्मों का ठीक अनुमान लगाया था। अतएव निष्कर्ष यह निकलता है कि महाराज परीक्षित के समक्ष धर्म के प्रतिनिधि तथा पृथ्वी के प्रतिनिधि के सारे कष्टों को जानबूझकर यह सिद्ध करने के लिए प्रस्तुत किया गया था, क्योंकि वे भली भांति जानते थे कि आध्यात्मिक उन्नति के दो स्तंभों गाय पृथ्वी तथा ब्राह्मण धर्म को किसी तरह संरक्षण प्रदान करना चाहिए। प्रत्येक व्यक्ति पूरी तरह भगवान के बस में है। वे जब किसी के द्वारा कोई काम कराना चाहते हैं तो उनका कर्म सही होता है। इस प्रकार महाराज परीक्षित की महानता की परीक्षा ली गई। अब हमें देखना है कि वे अपने कुशाग्र मन से इसे कैसे हल करते हैं। हरे कृष्णा। ओम अज्ञानतिमिरान्धस्य ज्ञानाञ्जनशलाकया चक्षुर्मिलितं तस्मै श्रीगुरुवे नमः। श्रीचैतन्यमनोभीष्टं स्थापितं येन भूतले स्वयं रूपकदा मह्यं ददाति स्वपदं वन्देऽहं श्रीगुरुश्रुतापदकमलं श्रीगुरून् वैष्णवां च श्रीरूपं सागरजातं सगण रघुनाथान्वितं तं सजीवं साद्वैतं सावधूतं परिजनसहितं कृष्णचैतन्यदेवं श्रीराधाकृष्णपादान् सहगणं ललिता श्री विशाखान्वितां च। हे कृष्ण करुणा सिंधु दीनबंधो जगतपते गोपेश गोपिका कांत राधा कांत नमस्ते। तप्त कंचन गौरंगी राधे वृंदावनेश्वरी वृषभानुसुते देवी प्रणमामि हरिप्रिये। वाञ्छाकल्पतरुभ्यश्च कृपा सिन्धुभ्यश्च पतिता नाम पावनेभ्यो वैष्णवेभ्यो नमो नमः। जय श्री कृष्ण चैतन्य प्रभो नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर श्रीवासादि गौर भक्त। हरे कृष्ण 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 हरे 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 राम राम राम। नमो विष्णुपादाय कृष्ण विष्टाय भूतले श्रीमते जयपताका समनित नामिने। नमो आचार्य पादाय निताय कृपाप्रदायिने गौरकथा धामताय नगर ग्राम तारणे। नमः विष्णुपादाय कृष्ण विष्टाय भूतले श्रीमते भक्ति वेदांत स्वामिनिते नामिने। जय श्रील प्रभुपाद। अप्रत्यक्याद् अधिनिर्देशात् अपि केशवस्य निश्चयः अत्रानुरूपं राजऋषे विमर्श्य स्वमनीषया। तो हम सुन रहे हैं, धर्म बोल रहे हैं महाराजा परीक्षित को कि महाराज परीक्षित ने कहा अपनी गवाही दो, बताइए आपके साथ नामजद कीजिए। वो एक उर्दू वर्ड है नामजद, नाम बताइए किसने आपके साथ दुर्व्यवहार किया। तो हमने कल सुना, आज कह रहे हैं कि तर्क के द्वारा या कल्पना के द्वारा
किसी निश्चय पर नहीं पहुंचा जा सकता है। श्रीमद् भागवताम का श्लोक मैं काफी कोट करता हूं। तर्को प्रतिष्ठो श्रुतयो विभिन्ना नैको ऋषयस्य मत प्रमाणम धर्मो हि तेषां निहित गुहायां महाजनो येन गतः सपन्थाः। तर्क के द्वारा या श्रुति के द्वारा, तर्क और श्रुति, एक अगर आदमी तर्क करता है तो दूसरे उस तर्क का खंडन कर सकता है, और बहुत सारे लोग मिलकर के उस तर्क का खंडन कर सकते हैं। क्यों? हमारी जो संस्कृत भाषा है, एक एक शब्द के अनेक अर्थ हैं, अनेक अर्थ। तो अकॉर्डिंग टू कर्म, अकॉर्डिंग टू रुचि, रुचि और कर्म के द्वारा आदमी उसको एक्सप्लेन कर सकता है। इसलिए प्रभुपाद जी ने, आपने सुना होगा, प्रभुपाद जी ने क्या किया, भगवद गीता एज इट इज एंड कृष्णा एज ही इज। समझ गया? भगवद गीता एज इट इज एंड कृष्णा एज ही इज, नो अडल्ट्रेशन। जो भगवान ने कहा, जो कल प्रभु बताए थे, असितो देवलो व्यास, जिन्होंने कहा, जो लोगों ने कहा, उस पे प्रमाण है कि कृष्णा एज ही इज। तो भगवान को जानने के कई तरीके हैं, सत्य को जानने के कई तरीके हो सकते हैं, लेकिन वो सत्य हो यह जरूरी नहीं है। क्यों? कि जो आपने देखा, जो आपने सुना, वो लिमिट में है। माना आपने किसी आदमी को, किसी को मारते देख लिया, पीटते देख लिया, अब अपनी आंखों से देखा, सच्चाई है, पीट रहा था, हमने पीटे देखा, लेकिन क्यों पीट रहा था उसके बारे में आपको मालूम नहीं है। कोई बोला हाँ मैंने इसको मारते देखा, मैंने मारते देखा, क्यों मारा वो हमें मालूम नहीं, वो सत्य हमें मालूम नहीं है। तो जो कुछ हम देखते हैं, जो कुछ हम सुनते हैं, जो कुछ हम समझते हैं, वो सत्य हो इसका कोई प्रमाण नहीं है। क्योंकि हमारी जितनी इंद्रियां हैं वो अपूर्ण हैं, फुली डेवलप नहीं है। आप जहां बैठे हैं, पिछले कमरे में क्या हो रहा आपको मालूम नहीं है, आप सर्वज्ञाता नहीं है। इसलिए सच क्या है, भगवान ने भगवत गीता में कहा है, लोके यस्मिन् द्विविधा निष्ठा पुरो प्रोक्तो मया नघ ज्ञान योगेन सांख्यानां कर्म योगेन योगिनां। हे अर्जुन, मुझे जानने के दो तरीके हैं, जानने के हैं, सांख्य योग और कर्म योग। आप भगवान को जान सकते हैं, लेकिन भगवान आपको जाने इसकी कोई गारंटी नहीं है, इसकी कोई गारंटी नहीं है। 11.55 मत कर्म कृण मत परमो मत भक्ता संग वर्जितः निर्वैरः सहमामेति पांडव। उनको मैं जानता हूं, जा अद्वेष्ट सर्वभूतानां मैत्र करुणैव च निर्ममो निरहंकार सुख दुख सुख क्षमी। भगवान उनको जानते हैं। यो न हृष्यति न द्वेषी न शोचति न कांक्षति, भगवान उनको जानते हैं। तो यहां पर परीक्षित महाराज की परीक्षा हो रही है, धर्म क्या तुम बताओ। और आज का हमारा समाज है, जब कोई केस कोर्ट में जाता है तो जो राजा जो 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 जज है वो दोनों की बात सुन करके अपना निष्कर्ष निकालेगा, दोनों की बात को सुन के अपना निष्कर्ष निकालेगा। और जब उसने निष्कर्ष निकाल दिया तो जो पार्टी हारती है ना, वो अपील करती है कि ये इसने गलत निर्णय दे दिया। अगर वहां भी कुछ हो गया तो उसके ऊपर जो है चलता रहता है, जो हारेगा अपील करेगा, जो हारेगा अपील करेगा, और ये चलता रहता। क्योंकि सच किसी को नहीं मालूम। जज ने भी जितना सुना, जितना परखा उतने बात किया, अब उसको सच्चाई क्या मालूम, कौन सच बोल रहा है। इसके लिए तो परीक्षित कह रहे हैं कि तुम राज ऋषि हो, ये तुम पता करो। और भगवत गीता अर्जुन ने और क्या कहा, व्यामिश्रेण वाक्येन बुद्धिमोह्यम वशीम में
हे भगवान, तुम्हारे जो वाक्य है ना, ये इक्विवोकल है, ये भी करो ना भी करो, ये भी करो वो भी करो, ये भी करो वो भी करो। मुझे करना क्या हो तो बताओ। अतः भगवान ने क्या कहा, सर्वधर्मान परित्यज्य, ये करना है, बीच से सब छोड़िए आप, मुझे क्या करना है, तुम्हारे वाक्य भी मिश्रण है, तो बोलो सर्वधर्मान परित्यज्य, सब धर्मों को छोड़ दो। अब आप ये देखिए, पूरी भगवत गीता में धर्म के बारे में, भक्ति के बारे में, ज्ञान के बारे में बात है, कर्म के बारे में बात है। भगवान बोलते हैं क्या, इतना टाइम, यानी तकरीबन 650 या 655 और 60 श्लोक बोल करके बोलते हैं अच्छा छोड़ो, सर्वधर्मान परित्यज्य। भाई पहले बोल देते तो हमें तो 700 श्लोक रटने नहीं पड़ते अगर भगवान पहले बोल देते तो, हाँ? तब बोलते हैं। तो आज परीक्षित महाराज कहते हैं कि हे राज ऋषि, तुम ये पता करो, तर्क के द्वारा, मन की धारणा के द्वारा, किसी एविडेंस को प्रूव करने के द्वारा सच का पता नहीं किया जा सकता है, तो आप ही पता कर दो। अब देखिए सच्चाई क्या होती है। आपके भी दोस्त होंगे, आपके भी रिश्तेदार होंगे, वो आपसे ऐसी ऐसी बातें करेंगे कि आप समझेगा यही मेरा हितैषी है, इससे बढ़िया कोई दोस्त नहीं। क्या दोस्ती है, क्या मेरे लिए कुछ भी करने के तैयार है। इसी प्रकार आपके कहानी सुनाता हूं कि सच्चाई क्या है। एक लड़की वो है। हाँ। कि एक बार एक लड़का था, वो प्राणायाम करता था। प्राणायाम ने सांसों को रोकना, ये करना, और साथ ही साथ जो है वो भागवतम कथा सुनने जाता था। और जब कथा सुनने जाता, व्यासपीठ पे बैठ करके इरेक्ट होकर के कथा सुनता। एक दिन वो व्यास यानी जो व्यासपीठ पे बैठता है उसको व्यास जी कहते हैं, जो भागवतम कथा सुनाता है व्यास जी कहते हैं। तो व्यास जी के पास जाके बोलता है, व्यास यानी व्याख्यान, व्यास यानी एक्सपेंड। एंड श्रीमद् भागवतम में नारद ने, और नारद को ब्रह्मा जी ने कहा विपुली कुरु, नाउ यू एक्सपेंड। अब कैसे एक्सपेंड करना, श्रीमद् भागवतम में एक है, कैसे एक्सपेंड करना, अकॉर्डिंग टू द टाइम, प्लेस एंड सर्कमस्टांसेस यू कैन स्पीक in a way that the essence of Bhagavatam is delivered to the listener. अगर खाली हम एक लाइन पढ़ेंगे तो बात खत्म हो गई। उसको समझाने के लिए, परिस्थितियों को बताने के लिए ये छोटे छोटे वाक्य दिए गए हैं, और ये है अंडर अथॉरिटी विपुली कुरु। एंड फर्स्ट आई थिंक फर्स्ट कांटो में है द वर्ड विपुली कुरु, यू एक्सपेंड। तो इस प्रकार आपने देखो कि हम भी बीच में काफ़ी कहानियाँ बता देते हैं। अब यहाँ पे जैसे परीक्षित को कहा गया है तुम खुद समझो। अब कैसे समझेंगे? तो एक बार जो लड़का था वो व्यास जी के पास गया और कहने लगा कि जी मैं एक आपको बताता हूँ। बोले बेटे, बोले मेरे घर में मेरे पिताजी, मेरी माँ, मेरी दादी, मेरे भाई, मेरी बहन उसे इतना प्यार करते हैं, इतना प्यार करते हैं, इस दुनिया में इतना प्यार कोई नहीं कर सकता है। तो बोला फिर? बोले मैं सोच रहा हूँ कल अगर मुझे कुछ हो जाए तो उनका जीवन तो खत्म हो जाए। तो गुरुजी ने कहा अच्छा इतना प्यार करते हैं? बोला बस कोई इंतहा नहीं है, कोई इसके उदाहरण नहीं है, इतना प्यार करते हैं। तो बोला अपने परिवार की परीक्षा लोगे? बोला हाँ, परीक्षा में सब उत्तीर्ण होंगे। तो बोला देखो तुम्हें प्राणायाम आता है, कल सुबह तुम अपनी सांस लो करके लेटे जाना, कथा में मत आना, और मैं तुम्हारे घर पहुंच जाऊंगा और तब परीक्षा लेते हैं, देखिए कौन तुमको कितना प्यार करता है। उसने कहा गुरु महाराज क्या बात कर रहा, मुझे मालूम है बिना मेरे मुंह देखे वो एक रोटी नहीं खाते हैं, पानी का एक बूंद नहीं पीते हैं, कितना प्यार मुझे करते हैं। कहा ठीक है देख लेते हैं। अच्छा है, बहुत बढ़िया, प्यार होना चाहिए। तो गुरु के आदेश अनुसार ये बच्चा सुबह नहीं उठा, बिस्तर में लेटा रहा और प्राणायाम के द्वारा अपने सांस रोक ली। घर में देखा अब तक उठा नहीं है, तो जल्दी उठ जाता लड़का। आए उसके बिस्तर में देखे, उसके देखा सांस नहीं चल रही है, अब सब रोने लगे, हाय क्या हो गया,
विधाता ने क्या हमका कहर कर डाला, ये हो गया, बेचारा मर गया, जवानी अभी इसने कुछ देखा नहीं था, अभी मर गया। रोने लगे, विकराल होने लगे, लोग भी आए, सब क्या हो गया क्या हो गया, बोला बेचारा मर गया। तब तक वहां वो गुरुजी पहुंच गए। तो उन्होंने देखा गुरु आ गए, बोले हे गुरुजी आपकी शरण में हैं, कुछ कीजिए, इसको जीवन दान दीजिए। तो गुरु ने कहा मरे हुए कितना समय हो गया? बोला जी 15-20 मिनट हो गए। बोला हाँ कोई बात नहीं, मैं इसको जीवित कर लूंगा, ये नो प्रॉब्लम। और सब खुश कि देखिए भगवान की कृपा से भगवान ने हमें दूत भेजा है, वो पंडित को भेजा है, व्यास को भेजा है, वो इसका जीवन दान वापस कर देगा। तो पंडित जी ने कहा ठीक है, जल्दी से 1 कटोरी पानी लेके आओ। जो लोग भाग भाग के 1 कटोरी पानी लेके आए। पंडित जी ने उंगली डाली, 2 मिनट तक चुपचाप रहे। बोला ठीक है, ये बच्चा जिंदा हो जाएगा, कोई फिक्र नहीं है, लेकिन ये जो पानी ये पिएगा वो मरेगा, ये बच्चा जिंदा हो जाएगा। अब सब एक दूसरे का मुंह देखने लगे, कौन पिएगा कौन पिएगा कौन पिएगा कौन पिएगा। सबने हाथ खड़े कर दिए। मां बोलने लगी मैं पी लेती, लेकिन मेरे छोटे छोटे नाती हैं, उनको कौन देखेगा। बूढ़ा बोलने लगा अरे मेरी इतनी दुकान है, दुकान मैं मर जाऊंगा, दुकान खत्म हो जाएगी तो घर कैसे चलेगा। तो सब ने अच्छे अच्छे बहाने बनाए, पीने के लिए कोई तैयार नहीं हुआ। फिर साधु ने कहा, व्यास जी ने कहा अगर तुम्हें ऐतराज ना हो तो क्या मैं पानी पी लूं। उन्होंने कहा ओ महाराज आप धन्य हैं, आप कितने परोपकारी हैं, हमारे बच्चे के लिए आप अपना जीवन देने के तैयार हैं, प्लीज जल्दी कीजिए, देर मत कीजिए। और व्यास जी ने पानी पी लिया। अब ये सोते सोते लड़का सुन रहा था कि माँ ने क्या कहा, बाप ने क्या कहा, बहन ने क्या कहा, भाभी ने क्या कहा, बच्चों ने क्या कहा, सब देखा। वो जो है आश्चर्यचकित रह गया, उठ के खड़ा हुआ और गुरु के पैर पकड़ डाले। और सब खुश, अरे बेटा आ गया, बेटा आ गया, बेटा आ गया। हम तो परेशान हो गए थे। बोला चुप, परेशान हो गए थे तो कोई मुझसे प्यार नहीं करता है। तो फिर क्या, मुझे विरक्ति आ गई, अब तो मैं भजन करूंगा। और क्या भजन करेगा? तुलसी भरोसे राम के निर्भय होकर सोई, अनहोनी होनी नहीं, होनी हो तो होई। अब निर्भय होकर के राम के शरण में चला गया, मैं राम का भजन करूंगा। कोई अपना नहीं है, कोई किसी का नहीं है, सब अपने जुगाड़ में है। अपना जीवन कोई नहीं देता है, कोई यहां ददीची नहीं है जो दूसरे को अपना जीवन दे। बहुत सारी कहानियां, ये कहानी बहुत सारी कहानियां हैं। तो यानी जब तक हमें स्वयं अपने आप ये विश्वास न हो, रह मन विपिता हूं भली जो थोड़े दिन की हो, हित अनहित है जगत में जान पर्यो सब कोई। रहम जी कहते हैं थोड़ी इंसान को विपता आनी चाहिए। क्यों? ये परखने के लिए कौन अपने कौन पराया है। डॉक्टर साहब को मुझे ज़्यादा मालूम होगा, जब हमारा कोई अपना बीमार होता है हॉस्पिटल जाता है तो पहले हम शाम भी देखने जाते हैं, सुबह भी देखने जाते हैं, उस बाद दिन में 1 बार देखने जाते हैं, उस बाद हफ्ते में 1 बार देखने जाते हैं, यार पार्किंग नहीं मिलती, ये नहीं मिलता। उसके बाद फ़ोन से पूछ लेते हैं उसकी तबीयत कैसी है, और करीब करीब 1 महीने के बाद सब भूल जाते हैं कि हॉस्पिटल पड़ा हुआ। हम है आरंभ सुर, ऐसे दिखाने के लिए। कोई किसी प्यार नहीं करता है। अगर प्यार करो तो भगवान से, सिर्फ गोविंद से। सहारा लो तो गोविंद का, द्रौपदी की लाज बचाई, सहारा लो तो गोविंद का, गजराज के फंद छुटाए, सहारा लो तो गोविंद का। और हमारे यहाँ गोविंद कौन है? हमारे वैष्णव लोग। भगवान तो स्वयं नहीं आएंगे, वैष्णव जन के उनके प्रति आभार प्रकट करना, उनकी सेवा करना, यही गोविंद के चरण है। वरना कोई अपना नहीं है, कोई अपना नहीं है। एक चीज और बोल दूं कि गुरु जी थे, उनका एक शिष्य था। तो उन्होंने शिष्य को कहा कि बेटे मेरे बदन में दर्द हो रहा है, दबा दोगे? बोला हाँ गुरु महाराज दबाऊंगा, क्यों नहीं दबाऊंगा, बराबर दबाऊंगा।
तो बच्चा दबाने लगा, मेहनत करने लगा। महाराज करीब रात के 9 बजे सोने गए थे, वो दबा रहा है, अच्छी के दबा रहा है कि गुरु महाराज को नींद आ गई। गुरु महाराज 10:30 के करीब बोलते हैं, अरे तुमने बताया नहीं तुम कितने भाई हो? बोले महाराज हम 4 भाई हैं। अच्छा लगे रहो। वो दबाता रहा, दबाता रहा, दबाता रहा, दबाता रहा। 1:30-2 बजे गुरु महाराज बोले, अच्छा वो बड़ा भाई क्या काम करता है? कि जी उसकी अपनी दुकान है। अच्छा बड़े लगे रहो। वो दबाता रहा, दबाता रहा। इस प्रकार जो है रात के 3 बज गए। तो गुरु महाराज, अरे मैं भूल गया बेटा, ये बताओ तुम कितने भाई हो? बोलो महाराज 3। बोला 3? तो पहले 4 बोल रहा था। बोला हाँ जी, एक जो है गुरु जी के पैर दबा दबा के मर गया। तो गुरु ऐसे भी होते हैं। बोला एक तो 6 घंटे से दबा रहा, वो तो मर गया, वैसे अब 3 ही बाकी। तो कहने का मकसद है साक्षात्कार होना बहुत जरूरी है। अर्जुन को भी भगवान कृष्ण ने जब अश्वत्थामा के पकड़ के लाए, तो अश्वत्थामा को मारने के लिए द्रौपदी ने कसम खाई थी। और जब पकड़ के लाए तो वही द्रौपदी कहती है, मुच्यताम ही ऐसा, ही इसको छोड़ दो। क्यों छोड़ दो? क्या कारण था? कि जिस प्रकार मैं अपने बच्चों के लिए रो रही हूं, मैं नहीं चाहती हूं कि अश्वत्थामा मरे और कृपी मेरे तरह रोए। तो देखिए, अपना दुख कम, कृपी का दुख ज्यादा। और भगवान कहते हैं ब्राह्मण की हत्या नहीं करनी चाहिए, और जो गुरु का बेटा उसकी हत्या नहीं करनी चाहिए, लेकिन जो आताताई उसकी हत्या करनी चाहिए, जो धर्म को उल्लंघन उसकी हत्या करनी चाहिए। ये भी बोला, ये भी बोला, ये भी बोला, ये भी बोला। और अर्जुन बोला मैं क्या करूं? बोला यथा इच्छा तथा करूं, जो मर्जी करना करो। तो अर्जुन ने अश्वत्थामा के सिर से मणि निकाल दी और वहां से खून रिसता रहा। और कई पुराण कहते हैं कि अगला जो मनवंतर आएगा ना, 29th मनवंतर, उसमें जो है मिलेनियम में अश्वत्थामा ही व्यास बनेगा। तब तक उसको बहुत रियलाइजेशन आ गई। तो यहां पर परीक्षित महाराज को कह रहे हैं, आप बताइए, आप पुरुष श्रेष्ठ हैं, आपको भगवान के दिए हुए जितने भी साधन हैं, जितनी भी शक्तियां हैं, उनका प्रयोग करके, उनका उपयोग करके आप ये फैसला लें कि हमारे कष्टों का क्या कारण है और हमें कष्ट क्यों मिल रहे हैं। प्रभुपाद जी ने नंबर कमेंट में लिखा है, हो सकता है कि इस वक्त हमें ये मालूम ना हो हमने कोई गलत काम किया हो, लेकिन पिछले जन्म में, कितने जन्म है? हजारों जन्म है। किसी ने कहा कि धृतराष्ट्र को, एक अधम को 100 पुत्र कैसे पैदा हो गए? एक पुत्र होना बड़े भाग्य की बात है। क्यों भाग्य की बात है? क्योंकि वही पू वाले नर्क से अपने पूर्वजों को तारता है। पुत्र का होना, पुत्र त्रायते, यह त्रायते 100 पुत्र। लेकिन इसने क्या ऐसी काम कर डाला जिसको 100 पुत्र हो गए? तो तब कोई कहते हैं कि पिछले कई जन्मों में एक हंटर था और इसने किसी पक्षी के 100 बच्चों का मार दिया और उस पक्षी को श्राप दिया था कि जाओ तुम भी अपने पुत्रों के वियोग में मरोगे, जैसे मैं तड़प के मर रही हूं। अब पुत्रों के लिए कहा, वो मनुष्य शरीर में था तो मनुष्य पुत्र होने दिए। इस प्रकार धृतराष्ट्र ने इतने पुण्य किए कि उसके 100 लड़के पैदा हुए। और तब जाकर के कई जन्मों की पिछले के बाद है, इस जन्म में आकर के उससे पुत्र शोक हुआ। तो प्रभा जी एक ऐसे कमेंट में कि इस वक्त हो सकता है हमें याद हो हमने कोई गलत काम नहीं किया, लेकिन पूर्व जन्मों को क्या? और जैसे हम कई दिन पहले बता रहे थे कि जितने भी हमारे कर्म है, चाहे वो अकर्म हो, चाहे विकर्म हो चाहे कर्म हो, उनका सुख और दुख हमें भोगना ही पड़ेगा, चाहे कितना क्यों ना लग जाए। तो क्या हम जन्म जन्मांतर यही रहेंगे? यही तो भागवतम है। नहीं, हमें नहीं रहना पड़ेगा। अगर भगवान की भक्ति करने लगे, हमारे सारे पाप
और पुण्य समाप्त हो जाएंगे और हम इसी अवस्था में इस शरीर को त्यागने के बाद हम गोलोक धाम जा सकते हैं, भगवान ने कहा है। तो सततम कीर्तयन्तो माम यतन्तस्य दृढ़ व्रत हो करके हमें भगवान का भजन और कीर्तन करना चाहिए। तो इस प्रकार राजन को, परीक्षित महाराज को परीक्षा हो रही है कि बताओ, तुम सोचो, तुम निर्णय करो, हमने तुम्हारे ऊपर छोड़ दिया। और इस प्रकार इस श्रीमद् भागवतम आगे बढ़ेगी। यहाँ लिखा है कि कली को दंड एंड पुरस्कार, देखिए कली को दंड भी है और पुरस्कार भी है, उसकी चर्चा हम आगे करेंगे। आज मैं अपनी वाणी को यहीं विराम देता हूँ। हरे कृष्ण।